one thing motivated me to think something new, do something new. एस्पिरेशन वन मस्ट है, और सक्सेसफुल होने के लिए एस्पिरेशन के साथ साथ पर्सपिरेशन भी जरूरी है, हार्ड वर्क, एम्बिशन. सो आई ऑलवेज टेल माय यंग पीपल, इफ सक्सेस इज 100, 1% इज एस्पिरेशन, 99% इज पर्सपिरेशन. हाँ. जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा काम में ना, तो आप सीखेंगे. रिस्क तो भाई लाइफ में हर चीज में रिस्क है. पैदल चलते हैं तो रिस्क है, गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क. आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज टू यू टू मैनेज द रिस्क. इट इज how do you first of all define the risk, how do you analyze the risk, and then also have clear plans of risk mitigation. That's what we all learn. CA में क्या करते हैं, ये सिखाते हैं कि भाई रिस्क को मैनेज कैसे. So any business you do will run into risk. There'll be unknown ponderables. You don't know everything. कुछ आएगा. You should know कि what is the maximum risk you may get into this business, and if it comes, how do you manage it. Hello, hi everyone. Welcome to the Pursuit of Finance Stories Beyond Number podcast. I'm Nidhi, and together with my co-host Tripti, we will take you through world of finance careers. We will learn from the stories of leaders who have successfully navigated financial landscape. Either you are a seasoned professional or you're just starting your careers, you will have learnings to take away. Today, we have a very special guest with us, Anand Athi sir. He is a gold medalist chartered accountant. He has more than 53 years of experience. He is the founder and soul of Anand Rathi Group. Previous to Anand Rathi Group, he held outstanding career at Aditya Birla Group in various roles, helping them to shape up their cement business and to start many new business like Birla Mutual Fund. Anand Rathi sir has also led BSE from 1999 for many years. Under his leadership, there was a huge growth in the Bombay stock online trading. Anand Rathi sir, in addition to his work, is also very active socially and really helping all the professionals to grow. So thank you so much Anand sir for joining us. हम लोग बहुत बहुत नमस्कार करते हैं for giving us your precious time, sir. नमस्कार Nidhi, Tripti. It's a pleasure for me to be talking to you, and I hope what I talk today can help the young guys to think for an excellent career ahead for them. Yes, thank you so much sir. So Anand sir, हमारा first question आपसे रहेगा. आप अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करें, आपकी जर्नी, starting from आपका चाइल्डहुड, कहाँ पे आप जन्म हुए, आपका चाइल्डहुड कैसा था, and about with your personal life and professional life, sir. All right. I was born in Jodhpur in June 1946, and all my education was in Jodhpur. शुरू में schooling, high school, then graduation, commerce, and then articles of CA. So till I did my CA, my entire education path and progress was in Jodhpur town. And then of course my professional career started in 1967 from DCM Delhi. Okay. ये आदित्य बिरला ग्रुप से पहले मतलब DCM से आपने स्टार्ट किया? जी. So 67 में मैं 66 में मैंने CA, जब November 66 I did my final CA. I was gold medalist of that batch. उसके पहले November 65 में मैंने CA इंटर किया. उसमें मैं I had second rank in CA इंटर. And BCom also had second rank. So after doing CA final, the first interview came from DCM. उस समय DCM Limited was one of the best known company. दो जो सबसे बढ़िया कंपनी होती थी जिसमें लोग जाना चाहते थे, one was DCM, second was हिंदुस्तान लीवर, जिसमें तुमने काम कर रखा है. तो सबसे पहले DCM का मेरे पास जब ऑफर आया, एक इंटरव्यू दिया, वहीं सिलेक्शन हो गया, वहीं मैंने ज्वाइन कर लिया. That's how my journey started, professional journey from DCM. Yes sir. सर उसके बाद में आपने आदित्य बिरला ग्रुप में बहुत सारे रोल्स किए. So what made you to then join there? थोड़ा सा बता दूं, मैं DCM में ज्वाइन किया था मैंने सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग. उसके बाद मुझे अकाउंट्स का रोल मिला. एक DCM जो यूनिट होती थी बाड़ा अंदुराव में, उसके 1.5-2 साल के बाद मुझे वहाँ का
सेंट्रल जो टेक्सटाइल डिवीजन था, जिसमें सारी टेक्सटाइल मिलों को देखते थे, वहाँ रोल मिल गया। तो मेरा मेजर थिंग आई थिंक व्हाट आई डिड देयर वाज टू क्रिएट एन एक्सीलेंट MIS फॉर द DCM ग्रुप। वहाँ एक MIS की शुरुआत मैंने वहाँ की, और ऑल्सो सारे सिस्टम्स का इम्प्रूवमेंट फॉर एंटायर DCM टेक्सटाइल ग्रुप। तो मैं विनय बलराम जी के साथ मैंने काम किया, और मैंने जब ज्वाइन किया तो उनके छोटे भाई जो अरुण बलराम जी हैं, वो उस समय ज्वाइन किए थे। तो मैंने और अरुण बलराम जी ने मिलके सारे प्रोसेसेस परचेज के, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, स्टोर्स के सारे प्रोसेसेस को हमने एक उस समय एक नारा दिया था विनय बलराम जी ने, ओकोस ओकोस, वन कंपनी वन सिस्टम, वन कंपनी वन स्टैंडर्ड। उसको लेकर हमने दो वर्ष तक उसमें काम किया, और सारे DCM के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको बोलते हैं, वो हमने वहाँ डिज़ाइन किया। तो करीब 4.5 साल मैंने वहाँ काम किया, परंतु वहाँ ये था कि भाई काम उसी में फिनेंस अकाउंट्स में लिमिटेड था। मेरी चाह थी कि थोड़ा एरिया काम का बढ़े। हालांकि DCM बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा काम, मुझे प्रोग्रेस मिली। तो मैं देख रहा था कि कोई इससे ज़्यादा फंक्शनल एरियाज़ का कैसे मुझे मिले। तो एक कंपनी आई थी स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड, जो पॉलिएस्टर फाइबर बनाने की कंपनी नई शुरुआत होने वाली थी। तो 71 में वहाँ से जब मेरी मुलाकात हुई, सीताराम जी जयपुर वहाँ के MD थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सारा कमर्शियल फंक्शंस का भाग देने की बात की, कि उसमें स्टोर्स भी मेरे पास, परचेज भी मेरे पास, HR नहीं होती तो उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट होता था, जो भी फंक्शन थे। और नई कंपनी थी तो उसमें फंड रेजिंग, IPO किया वहाँ का उस कंपनी का, तो और नई कंपनी का पूरी सिविल कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग, उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना, ऐसे करके वहाँ, इसलिए मैंने वहाँ करीब 2.5 वर्ष काम किया। वो कंपनी का प्रोडक्शन आ गया था। प्रोडक्शन आने के बाद जो है कुछ डिफ़िकल्टीज थी, वो मैंने सॉल्व की। फिर उसके बाद मैंने 7 वर्ष वहाँ दिल्ली में रह के ये 2 कंपनियों में काम किया। एंड देन आई मेट आदित्य बिरला जी, एंड ही ऑफर्ड मी एन ओपनिंग इन इंडियन रेयन। तो इंडियन रेयन जो वेरावल में है, उसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर जहाँ है वहाँ पे था। तो वहाँ भी एक कारण ये था कि वहाँ और एक्सपेंडेड रोल, I was taken as number 2 man in the organization, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम भी देखने का मुझे कैसे अवसर मिले। So I learned the technology part also. तो इसलिए that was the reason which made me join, and of course working with Mr. Aditya Birla. And एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूँ, उस समय because I was looking for a larger role when स्वदेशी पॉलिटिक्स में था, तो also I got an offer from Hindustan Lever, as a commercial manager, and I have the option to decide whether to join Birla Group and Hindustan Lever. And of course, despite advice from all my professional friends कि भैया हिंदुस्तान लीवर में चले जाओ, परंतु मुझे लगा कि इंडियन रेयन वाज एट दैट टाइम a loss making company, and तो मेरे को लगा कि ऐसी कंपनी जिसमें चैलेंज हो वहाँ करना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, परहैप्स I may not be able to contribute as much as I could do in a company which was still not making money. It was growing, Mr. Birla's company. So that made me decide. So this was a big step for me to not to join Lever and to join Aditya Birla Group, Indian Reyon, and I joined as vice president there. तो यहाँ तक कि ये है, आगे का भी बता दूँ पूरा? हाँ जी सर। ओके, तो 4 वर्ष वहाँ काम किया। इस बीच में बिरला जी की कंपनी एक जयश्री टेक्सटाइल्स कलकत्ता में है, वो अलग कंपनी थी, वो भी लॉस में चल रही थी, और मोटी बात है कि उनके फाइनेंस की बड़ी कमी थी। तब तक हमारी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गई, इंडियन रेयन, हमारे पास सरप्लस फंड्स रहने लगे। तो और बिरला जी की एक चिंता थी कि यार ये जयश्री टेक्सटाइल्स को कैसे ठीक करेंगे। तो उनको मैंने एक प्रस्ताव रखा कि सर
लेट्स मर्ज जयश्री टेक्सटाइल्स इनटू इंडियन रेयॉन, इन दोनों को मर्जर कर दें तो दोनों कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस अच्छे होंगे। और बिरला जी ने वो बात मानी, तो मैंने 76 में 2 साल ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी को इसमें मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद फिर बिरला जी ने कहा यार मर्ज तो कर दिया, अब जयश्री टेक्सटाइल थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तुम वहाँ चले जाओ। और वो बड़ा डिफिकल्ट काम था, जबकि मेरी उनसे बात हो रखी थी, मैं कलकत्ता कभी नहीं जाऊँ, क्योंकि कलकत्ता का उस समय मतलब बहुत ही अनरेस्ट चल रहा था, लेबर अनरेस्ट, यूनियंस अनरेस्ट, तो बंद नहीं था मेरा। और मेरी बात भी उनसे पहले ले रखी थी कि साहब वहाँ तो नहीं जाऊँगा मैं कलकत्ता, परंतु उनका इतना हमेशा परसुएशन रहा कि भाई नहीं आनंद, एक बार मेरे कहने से चले जाओ। सो फाइनली I moved to that company in 78. जैसे टेक्सटाइल डिवीजन हो गया था, और I became the first time I became a profit center head. एक टेक्सटाइल का मुझे प्रॉफिट सेंटर एक यूनिट का दिया गया, और चैलेंज था अच्छा कि उसको टर्न अराउंड करना था। सो आई टर्न अराउंड दैट कंपनी, वो प्रॉफिट में ले आया, उसका सारा एक्सपेंशन किया, सारा होल मैन्युफैक्चरिंग उसका जो बेस था वो पूरा कॉटन टेक्सटाइल में था, उसको सिंथेटिक में लाना। तो 4 साल बहुत अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू क्रिएट समथिंग न्यू, जहाँ से मेरी पहली शुरुआत हुई नई चीज़ चालू करने की। ओके, छोटी छोटी चीज़ें पहली हो गई थी, परंतु दैट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो 4 वर्ष वहाँ काम किया निधि, फिर एंड देन इन द मीन टाइम आई ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी to turn around a foundry of Birlas in Canada. कनाडा में उनकी एक फाउंड्री थी, तो इन दोनों फिर मेरी हो गया भाई कि कोई कंपनी लॉस करी तो आनंद को दो। सर आप तो मतलब टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट थे। या मतलब सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, परंतु हाँ, दैट वाज आई बिकेम नोन फॉर दैट कि भाई आई कुड रियली गो एंड टर्न अराउंड कंपनी। तो वहाँ कनाडा में मैंने रह के उस कंपनी को, इन एडिशन टू माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज हियर, आई डिड दैट जॉब और उसको टर्न अराउंड किया, प्रॉफिट में आ गई। देन ऑफ कोर्स आई गॉट अनदर ओल्ड कोलीग ऑफ माइन ऑफ DCM कि भैया तुम अब संभालो, ही केम एंड जॉइन। सो ये करते करते फिर आया कि भैया जयश्री टेक्सटाइल्स का अच्छा हो गया है, व्हाट नेक्स्ट। सो देन आई थॉट कि भैया नई इंडस्ट्री में बिरला जी को सजेस्ट किया, एंड दैट्स वेयर द सीमेंट केम टू माई माइंड। बिरला जी के भी दिमाग में सीमेंट का था, तो बोले भाई अच्छा सीमेंट करेंगे, तो दैट्स हाउ। सो आई वाज देन एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी लकी टू बी मेड प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 35-36। उस समय ये बिल्कुल अनयूजुअल था बिरला ग्रुप। अनयूजुअल, यस, अभी भी अनयूजुअल ही है वहाँ पे इतना अर्ली एज पे बनना। तो सीमेंट का जो है, जैसे राजश्री सीमेंट करके हमने इंडियन रेयॉन का एक पार्ट था, वो कंपनी मैंने फिर शुरू से उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब, वहाँ हमारे बड़े कैपेबल साथी थे, एक बुनियार जी थे मेरे साथ जो है, ही वाज और जॉइंट प्रेसिडेंट, आई वाज प्रेसिडेंट, एंड हम दोनों ने मिलकर और पूरी टीम खड़ी की और उसको। तो ये आदित्य बिरला जी की पहली सीमेंट यूनिट थी। तो आज जो आप अल्ट्राटेक देख रहे हैं, उसकी शुरुआत राजश्री सीमेंट की 1982 में हुई। वहाँ से पहली सीमेंट प्लांट लगा, उसके बाद दूसरे सीमेंट प्लांट बिरला ग्रुप में लगते गए, पर मैं जब तक रहा दैट वाज द बिगेस्ट प्लांट ऑफ बिरला ग्रुप। मैंने 3 यूनिट लगा के खूब कैपेसिटी बढ़ा दी। सो टिल 94, फ्रॉम 82 टू 94 सीमेंट मेरा पोर्टफोलियो रहा। उस बीच में फिर बिरला वाइट सीमेंट की कंपनी लगाई, वो जो है, और उसकी विशेषता वाइट सीमेंट, आज भी बिरला वाइट इज द लीडर इन वाइट सीमेंट स्पेस। और पहली बार जब ये हुआ कि बिरला की कोई प्रोडक्ट में बिरला नाम लगाएगा, बिरला वाइट। इसके पहले अगर आप देखें कोई भी प्रोडक्ट जो बिरला बनाते थे, अनलाइक टाटा, हर एक में टाटा प्रोडक्ट लिखते हैं, ओके, हिंदुस्तान लीवर लिखता है यूनिलीवर प्रोडक्ट, पर बिरला में ये
इस तरह की प्रैक्टिस नहीं थी। तो फिर मैंने मिस्टर बिरला को परसुएट किया कि सर नाम होना चाहिए। उनके मन में ये था यार ये नाम होगा, कभी क्वालिटी इमेज खराब होगी तो क्या होगा। मैंने कहा ये उल्टा होगा साहब, आपका नाम होगा तो फिर कोई खराब कर ही नहीं सकता है। फिर उनको पता है कि बिरला जी की इमेज है इसमें। So I think people will get more motivated to do better, create better image for the product, for the company, and that exactly happened. So Rashtriya Cement in a very short period became the leader in cement business. Birla White became, जैसे मैंने बताया अभी बिरला नाम होने से, that got leadership within 2 years. It became the biggest white cement company. We started exporting. और फिर another thing which I did was to create a concept of central finance cell. अब बिरला जैसे इंडियन रेवन की कई यूनिट्स हो गई थी, अगर 5-6 यूनिट्स हैं तो उनका फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे हो, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ सेंट्रल होता है सब जगह, कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसको कहते हैं लोग। आई क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल फाइनेंस सेल, अभी भी CFC के नाम से वहाँ बिरला में जानते हैं। तो भाई कैसे मैनेज किया जाए डिफरेंट यूनिट्स का कैश फ्लोज, कैसे मॉनिटरिंग सिस्टम रहे, वो क्रिएट किया। देन सीमेंट के लिए आई मूव फ्रॉम कलकत्ता टू बॉम्बे इन 1982। फिर उसके बाद जब सीमेंट बिजनेस थोड़ा अच्छा हो गया तो हमेशा वन थिंग मोटिवेटेड मी टू थिंक समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। ओके, तो उससे सीखने समझने की बहुत मिलता है। तो वहाँ दैट इज वेयर आई थॉट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिरला में इसके पहले फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं होती थी। तुमने जैसे कहा बिरला म्यूचुअल के पहले हमने ये आज आदित्य बिरला फाइनेंस जो आप नाम देख रहे हैं, इसका ओरिजिनल नाम था बिरला ग्रोथ फंड लिमिटेड। फिर उसका नाम चेंज किया गया बिरला ग्लोबल फाइनेंस, एंड देन ऑफ कोर्स इट बिकेम लेटर ऑन आदित्य बिरला फाइनेंस। तो उसकी शुरुआत मैंने 89-90 में फाइनेंशियल, दिस वाज द फर्स्ट सर्विसेज बिजनेस फॉर बिरलास। अगेन यू नो बिरलास में एक प्रैक्टिस है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, ओके, जहाँ कैपेसिटी बढ़ा सके, यू नो। सर्विसेज वाज नॉट द प्रेफर्ड रूट बिरलास के लिए। तो पहली बार किया तो समय लगा मुझे। आदित्य बिरला जी को बोले यार कहाँ जाएंगे, छोटी छोटी तुम क्या ये फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कर लेंगे, लोगों को लोन देना, रिकवरी करना, इससे बड़ा काम तो है ना। तो मैंने कहा साहब नहीं, फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। सर आपको कैसे पता चलता था कि फ्यूचर है? सही सवाल किया तुमने। देखिए जब एक्सपोजर होता है ना, जब आप दुनिया यहाँ देखते हैं, मेरा ग्लोबल बहुत एक्सपोजर हुआ इन दिनों में। जैसे सीमेंट का कोलैबोरेशन जर्मनी से था, वाइट सीमेंट का जापान से था। इसके अलावा एक और मैंने एक यू नो टेकन ए न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा, मेरा सिस्टम ये था कि जब हर 2 साल में जाके बिरला जी कहता था कुछ नया काम चाहिए। जो एग्जिस्टिंग काम मेरे बहुत अच्छी टीम हो गई है, तो प्लीज गिव मी सम न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट एंड ही सेड अच्छा तुम ही बताओ क्या करना। तो एक जॉब मेरा ये भी था कि टू लोकेट द न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस, new areas of business. Okay. So I used to do research on that. Used to travel all over the world. हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट यू नो करे नहीं बाद में, पर सोचे जैसे ये उस समय पिक्चर ट्यूब्स, टीवी ट्यूब्स की बड़ा यू नो कलर टीवी आए थे, तो उस समय बड़ा था। तो आई विजिटेड ऑल द प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिलिप्स ये वो सबसे बात की। खैर कई प्रोजेक्ट देखने के बाद हम नहीं कर पाए, नहीं किया, हमने डिसाइड किया। परंतु यू नो दैट निधि गिव मी एक्सपोजर। जब दुनिया में जाके आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उस समय अमेरिका जाना या जर्मनी जाना या जापान जाना, दे वर ऑल वेरी एडवांस कंट्री, और वहाँ देख के लगता था कि ये कितना आगे बढ़ गए हैं, तो क्या सोचना चाहिए। तो सर्विसेज सेक्टर मेरा हमेशा था कि सर्विसेज सेक्टर इंडिया में जाके ग्रो होगा। उस समय तक till 90s or 80s, services sector was, you know, this IT just started. Tata ने भी start किया, TCS के through. TCS, Infosys, TCS was the first company जो start किया था। तो मैं बता दूँ 2 मिनट मेरा भी बैकग्राउंड। मैंने भी DCM में जब काम किया, DCM was the first company to install a computer.
हाँ, इनफैक्ट आपने जो बोला ना सर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपने 60s में ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो अभी लोग बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्रोसेसेस, ये तो आपने इतनी जल्दी आपने सीखा, टेक्नोलॉजी मतलब मैं समझो किया है, मतलब करने की शुरुआत वहां से सीखी। पहला कैलकुलेटर इंडिया का विनय बलराम जी लाए थे, जो मैंने यूज किया। उन दिनों में कैलकुलेटर नहीं था इंडिया में, कंप्यूटर की बात तो बहुत दूर की थी। तो पहला कंप्यूटर जब लगा तो IBM का IBM 1401 था एक कंप्यूटर, इतना छोटा। अभी आप लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, उसकी कैपेसिटी थी 8K। It was not 8K, अब तो कोई खिलौना भी 8K का नहीं आता। ओके, उस मशीन पर हमने सीखा, मैंने प्रोग्रामिंग सीखी। उस समय एक ऑटो कोडर, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाज ऑटो कोडर, सो आई लर्न दैट व्हाइल बीइंग इन DCM। तो बड़े ये मतलब दे वर ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग। तो वो आके मैं कमिंग बैक टू फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर बिरला जी से मैंने रिक्वेस्ट की सर इसमें जाना चाहिए। खैर फिर बनाया उनको, उनका खाली 1 करोड़ की कैपिटल दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ दीजिए, उससे आपने 1 करोड़ से शुरुआत की थी। 1 करोड़ की कैपिटल से बिरला फाइनेंस की शुरुआत हुई। ओके, सो क्योंकि मुझे प्रूव करना था, इट वाज ए सॉर्ट ऑफ POC होता है ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ जी। तो बिरला भी जाते थे, यार पहले कुछ करके दिखाओ, फिर देखेंगे क्या करना है। तो ठीक है, मेरे को मजा आता था कि चलो कुछ नई चीज करेंगे हम भी। फॉर मी आल्सो इट वाज न्यू लर्निंग। आई वाज नॉट I was a finance man, but not the financial services. Okay. तो एक सीखने का जो चाह थी कि चलो करते हैं, सीखते हैं। That is how we learn. When you make a lot of mistakes, but you start keep on learning, and that's how the finance function started. Then mutual fund. Okay. Birla Mutual Fund was perhaps the first mutual fund in private sector at that time. सर आपने इतना काम किया, उसके बाद फिर अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया, उसको करने के लिए कैसे मोटिवेशन आई? वो मतलब देखिए, शुरू से मैं एक चीज जो कहता हूँ कि आदमी की माइंड जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरल माइंड होना चाहिए। यस। मतलब लोग कंफ्यूज करते हैं कि हम तो ओनर नहीं है, एंटरप्रेन्योर कैसे हुए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ओनर की जरूरत नहीं है। योर माइंड शुड बी ओनर्स माइंड। ओके, एक अच्छी किताब है फाउंडर्स मेंटेलिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मेंटेलिटी, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ओनरशिप। तो मैंने हमेशा ये सीखा कि जो काम करें वो ये करना चाहिए कि मेरा खुद का है, खुद का ही काम है। हाँ, उसमें मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये भावना कभी मन में नहीं रखी मैंने कहा जो काम करूँगा अपना खुद क्या करूँगा। मतलब ये मालिक थे, सब कंपनियों के मालिक अलग थे, पर in terms of ownership of responsibility of business, that is what I do। कि नहीं भाई अपने करेंगे। तो इस तरह करते करते फिर बिरला म्यूचुअल फंड में कैपिटल इंटरनेशनल की पार्टनरशिप, which was not thinkable कि कैपिटल इंटरनेशनल was the largest mutual fund of entire country, entire world, sorry। और उनके साथ पार्टनरशिप लाना, और वो भी I brought partnership of only 40% their share, वो नहीं तो बिना मेजोरिटी करते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सारा एक्सपीरियंस जो शुरुआत DCM से लेके बिरला, बहुत अच्छा मुझे मिला। अब नेक्स्ट सवाल तुम कहो कि मैंने शुरुआत कैसे की। सर आपका बहुत एक्सीलेंट है सर, प्लीज बोलिए। नहीं तुम पूछो ताकि नहीं, मेरे को यही सर आपके लिए आपने 2 स्किल्स आपने बोला, आपका इतना अच्छा, आपका स्टडीज भी बहुत आउटस्टैंडिंग था, सारा रिजल्ट्स, और अभी पूरा करियर में भी आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, बहुत सारे नए बिजनेस सेट किए हैं। तो आपके लाइफ में सर आपने 2 स्किल्स मेंशन किए थे कि एक तो अभी आपकी लर्निंग, कि हर टाइम कुछ नया सीखना है, नया करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए और हम लोग सबके लिए। और दूसरा पॉइंट ऑन ओनर माइंडसेट, कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा से चले। तो आपके लिए ये दोनों पॉइंट्स जो मुझे अभी तक की डिस्कशन में टेक अवे, मेरे की टेक अवेज हैं, इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो सर आपका इतना आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग करियर रहा? देखिए, ये दोनों को ही करने के पहले देखिए एक चीज है कि लाइफ में एम्बिशन होनी चाहिए, एस्पिरेशन वन मस्ट हैव। यस। और सक्सेसफुल होने के लिए एस्पिरेशन के साथ साथ
पर्सपिरेशन भी जरूरी है, हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क, ambition. So I always tell my young people, if success is 100, 1% is aspiration, 99% is perspiration. Okay. हाँ, जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा काम में ना, तो आप सीखेंगे नहीं। ये एक्चुअली मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल यंग प्रोफेशनल्स। और आजकल क्या है, हम लोग को सबको चाहिए फटाफट, सब कुछ फटाफट, बट जो आपका पॉइंट है 99% आपने पूरी मेहनत करी है, सो दैट इज रियली हेल्प यू सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके साथ जैसे तुमने कहा एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग अगर है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मेरे तो ऑफिस का टाइम है, यू नो, पीपल टॉक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंसेज, मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग अलग हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस इज मीनिंग करे इतने टाइम ये काम करो फिर दिमाग हटा के दूसरे काम में लगा दो, ऐसा होता नहीं है। भगवान ने ब्रेन दिया है तो एक ही ब्रेन है, वो तो हर समय चलता है, चाहे ऑफिस में है तो घर का दिमाग में चल सकता है, घर में है तो ऑफिस का चल सकता है। सो आई थिंक व्हाट आई रियली थिंक भाई यू शुड हैव गिवन wherever you work, full your mind set there. फैमिली के साथ है तो वहाँ उस समय लगे रहो, चाहे घंटा लगाओ 2 घंटा लगाओ, it doesn't mean that you have to spend 10 hours, you know. So ये hard work is to my mind is a must. People think कि भाई बहुत knowledgeable हैं, we work smartly, बहुत अच्छी बात है, you should work smartly, आप लोग smart हैं, आप लोगों की knowledge बहुत ज़्यादा आजकल young generation is, I really envy with them in terms of their knowledge today. A young man is far more knowledgeable, many times than what we were at that age. Okay, so तो ये इसलिए I think कि इसके साथ तुमने चूंकि ये बात छेड़ दी तो ये इसको पूरी कर लें कि एक लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है, पर इसमें कई ये सारे इश्यूज आए, पर एक इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज इज वन क्रिटिकल थिंग दैट यू नो, अपने कहने के लिए सब लोग कहते हैं टाइम इज मनी, ओके, पर मैं सबको पूछता अच्छा हिसाब बताओ टाइम का, कितना टाइम का लगा, अगर तुम्हारा इफ इट इज मनी यू विल कीपिंग अकाउंट ऑफ मनी ना। आप हमेशा अपना शेड्यूल करते थे सर? यस, every day I think that's very important, and before you know financial success, your most important part is your health. Okay. How much time you're giving to your health every day, how much time you're giving to your business or other thing, how much time you're giving to your family, social work, well everything is important in life. And मेरा ये मानना, लोगों का हिसाब टाइम ही नहीं मिलता। Something my views are different. भगवान ने इतना टाइम दिया, कई बार लगता है अब करें क्या, खाली बैठे हैं, कुछ करने को ही नहीं है, but people don't think about it, you know. So while working, I'll tell you, जैसे these Indian में realm में रहते हुए तुम CA है, I contested the election of Central Council. Can you imagine कि नौकरी करते हुए इलेक्शन लड़ना? हाँ, it is actually बहुत टाइम प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्रैक्टिस में है, they are still able to find out time. बट आपने पूरा जॉब भी किया, that itself needs lot of time and planning also, sir. मतलब एक तो प्रैक्टिस वाले इतने लोगों को जानता है क्योंकि रोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, ऑडिट मिलेंगे, नौकरी वाले को अपने को वही मिल रहे हैं। So when I contested in 1985, I was new to Bombay. I came in 82 to Bombay. 85 में contest किया election. Of that, you know, Tripti's, you know, KG Somani Saab is great father-in-law. He is my mentor and guide and my closest friend in my life. तो वो तो थे ही पहले सेंट्रल काउंसिल में। ICAI के प्रेसिडेंट भी वो रहे हैं ना? वो प्रेसिडेंट मैं ही जब काउंसिल मेंबर था तभी बने। तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि यार चलो लड़ो। मैंने कहा यार जॉब में हूँ कैसे लड़ूंगा, बोले नहीं। तो आई ऑफ कोर्स कंटेस्टेड, आई वाज सेंट्रल काउंसिल मेंबर ट्वाइस, 85 to 88 and then 88 to 91. But obviously I couldn't take the vice presidency. I couldn't even think of it.
because I had full-time employment with Birla. Hmm. So that, all I'm suggesting कि लोग कहते हैं time नहीं है. मैंने देखा I used to spend almost, I think on an average 5-6 days in a month for this central council. But that was my biggest learning in life, remaining in that body, the type of discussions. You are part of research committee, you are part of accounting standards thing, you are part of so many committees, and you learn a lot. तो ये टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तुमको बताया कि ईश्वर ने बहुत टाइम दिया है. आप अगर प्लान करेंगे तो कभी टाइम की शॉर्टेज नहीं मिलेगी. सर एक और पॉइंट था रिलेटिंग टू न्यू, बिकॉज आपने हमेशा न्यू चीज स्टार्ट की. इवन जब आप आनंद राठी वेल्थ एस्टैब्लिश कर रहे थे तब भी काफी रिस्क एसोसिएट होते हैं. सो हाउ डिड यू बैलेंस कि आपका रिस्क, स्पेशली फाइनेंस फोक्स के अंदर रिस्क एपिटाइट इज लेसर. सो इफ यू कैन शेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि आपने फैक्टर्स, आपने न्यू चीज आइडेंटिफाई कर ली कि इसमें बहुत फ्यूचर स्कोप है, बट हाउ डू यू देन गो अबाउट इट एंड व्हाट अदर फैक्टर्स आपने कंसिडर किए थे सर? देखिए, मैंने अपना जब चालू किया उसमें, इसके पहले मेरा छोटा भाई ऑलरेडी इस बिजनेस में था, स्टॉक ब्रोकिंग. सो आई न्यू द बिजनेस वेरी वेल. और 93 में मुझे प्रोफेशनल मेंबरशिप मिली. अदरवाइज तो उस समय BSc की मेंबरशिप मिलना बड़ा मुश्किल था. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव मेंबरशिप. यूज्ड टू बी 2-3 crores, which was beyond, not affordable. But BSc ने 50 प्रोफेशनल मेंबर लिए एट ए वेरी रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन अबाउट 55 lakhs. तो उसमें नंबर आ गया मेरा naturally, I think, and that's how, when I got it, then I took obviously this thing, support from Birla ji. उनकी blessing ली मैंने, and he was so kind that, though he didn't want me to leave. इनफैक्ट ये ऑफर्ड में कि तुम अपना बिजनेस भी कर लो, तुम यहाँ भी काम कर लो. मैंने कहा सर ये ठीक नहीं रहेगा. दो नाव में पाँव रख के चलना इज नॉट एडवाइजेबल. आप कहेंगे तो मैं यही रहूँगा, आप कहेंगे तो मैं ऐसा रहूँगा. बट इज सो काइंड टू ब्लेस मी एंड ब्लेस मी दैट ही इनॉग्रेटेड माय ऑफिस, विच इज अगेन अनयूजुअल कि आपको एम्प्लॉयर को छोड़ के अपना काम चालू करो और एम्प्लॉयर ही आके आपको opening office. Aditya Birla, opened. He inaugurated my office. Sir, that speaks about your contribution. Yeah. तो रिस्क की जो बात है ना, रिस्क तो भाई लाइफ में हर चीज में रिस्क है. पैदल चलते हैं तो रिस्क है, गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क है. I think what we need to do is to manage the risk. It is how do you first of all define the risk, okay? How do you analyze the risk, and then also have clear plans of risk mitigation. That's what we all learn. CA में क्या करते हैं, ये सिखाते हैं कि भाई रिस्क को मैनेज कैसे करना. Absolutely. रिस्क तो होगी, okay, in anything. So any business you do, we will run into risk. There'll be unknown, ponderables. You don't know everything. कुछ आएगा तो उसमें आप you should know कि what is the maximum risk you may get into this business, and if it comes, how to manage it. Most of the people have difficulty because वो एक्सेल शीट को ही समझ लेते हैं कि हमारा सब कुछ ऐसे चलेगा, बना के दे दिया. हर साल 10% ग्रोथ होगी, 20% ग्रोथ होगी, इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इतना ये हो जाएगा. बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट. ओके, सिचुएशंस चेंज. कोविड आ गया, काम धंधा बंद हो गया. नो पीपल हु डिडंट प्लान, दे गॉट इन ट्रबल. आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेबर यूनियन की स्ट्राइक हो गई. ओके, so this is, I must say that in my early age of my life, I created a business risk model analysis. Okay, sir. What could go worst? Not thinking what could go only best. So think what can go best, what can go worst. So based on the best analysis, you should have enough opportunity to use that time. Create that without, and worst के अगर आ गया तो उस समय how will you manage? You should have a clear thought process of that. Okay. तो वो एक risk analysis, risk management, risk mitigation is key part in life.
एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है और हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स ली। और नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन के लिए मैं अपना तृप्ति को इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू निधि। हेलो तृप्ति, वेलकम। You're looking amazing, actually. So, Daji, as you know the CA profession. You have been a CA, and today's the articles. You know the way they take the training. What is your view about the training? Because I remember you talk a lot about your training. What is its importance, and how is it? How are these CAs different from MBAs? Because as Anand Rathi Securities, you're also employing a lot of MBAs. How can we improve, or what are your feedbacks on both the aspects? आई थिंक देखिए सीए का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग which is excellent, you know, और उसमें more importantly you learn the way to work with people, to understand people, not only understand business, that's one part, but also equal and important part is what you learn how to work with people. What is the emotional quotient which you need to have. You need IQ definitely to succeed in exams, but you need EQ equally good or more even to succeed in your life. तो ये एक लर्निंग जो है सीए में बड़ी इम्पॉर्टेंट है. MBA जो है, MBAs are conceptually superior. They understand concepts are far better because that's how they're taught, with case laws and case studies and everything, So उनकी ये वो और उनकी presentation skills, because that's what they do. So in some areas MBAs are ahead of CAs, but अब धीरे-धीरे I think that gap is reducing in a way. MBAs are focusing on lot of practical training now. They want a very strong training, चाहे 2 महीने की है पर है या 3 महीने की है. तो I think CA में एक और बड़ा एडवांटेज है कि you become details oriented. छोटी-छोटी चीज देखते हैं. MBAs में लगता है कि भाई हमको तो ओवरऑल समझना है. So sometimes the number detail crunching. I mean, I'm making a general observation. Not that all CAs do not have good presentation skills or conceptual history, or not all MBAs don't have detailing. ये तो देखिए बाकी की अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है, but by and large I think both professions are extremely good, and that's why we keep a combination. Being a CA, एक natural affection होता है कि हाँ भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है कम से कम नंबर्स में सिखाना perhaps much easier. So this is how to look at both the professions. So, Daji, I mean, you have a wonderful. I've seen you all this while. I've been 10 years of my marriage, 12 years now. I've been seeing you. What is your feeling about social circles? Today, community has become very important aspect of people's life. And I've seen you very social and community-driven person. What has been the role of community in your life and the social life as well? One is being an entrepreneur, and the other side is managing that side with your love and affection in the social circle. Would you love to share that? Yes. I think social life is also very important, which is what I call as EQ development. Social life में आप लोगों के साथ you learn so many things which you'll never learn in your profession or business. तो उनके साथ जाना social, this thing. So I believe that one should spend time with. While technology had made it easier, but also made it difficult for physical association socially. अब आजकल जो है वो कम हो गया, पर मेरा मानना है कि सोशल में जुड़ने से आदमी को बहुत लर्निंग होती है, which you sometimes don't realize it, but it teaches you how to create relationship, how do different people think about the challenges in society, social life, and how you can also एक contribution की भावना होनी चाहिए कि आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु I think you owe it to society which is giving you so much. I think you need to contribute to the society as well. So it should be so mutual, and more people who come into social functions
you'll find them are far happier, because Right. they have one more source of satisfying their needs. What is your routine like, Dadaji? You've been very inspirational all this while. One chartered accountant who's not just doing a CA thing, but also has built a business. So, what has been your routine all this while? Yeah. You see, routine, I just mentioned to Nidhi that one important thing in life is time management and clear objectives. So, objectives में मेरा हमेशा कहना है कि भाई health is most important. पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद है धन और माया. तो I think spending time on health is very important. And then, of course, the second thing to succeed is that good time management along with focus. What is, while people, the new generation is far more intelligent, far more knowledgeable about so many things. And access to information, knowledge has become so easy. But what has gone negative is the lack of focus, lack of concentration. Because of, technology, there is so many disturbances in जो है, I'm not against social media, but again I'm saying that have a time management. Yeah. So, related question: what has been your, the best few books you would like to share with our audience if you've read? You see, actually, I'm fond of reading books, and so I think, first thing मैं कहता हूँ आदमी को लाइफ में ambition होनी चाहिए. उसके लिए a book called Think Big. Okay. Read that. दूसरा आदमी को जो है एक entrepreneurship होनी चाहिए. What are you doing? उसके लिए I recommend a book called Founder's Mentality. Okay. One book which changed my early life was पहले अपने ये कहते थे seeing is believing. Okay. But then a book came which says if you believe it, you will see it. Yes. I forget the name of author right now because so many books I can't remember the author name. But that book, is something which is life changing. Okay. और आज की तारीख में तो growth के बारे में positive mindset. Again, large number of books I can recommend. That's very important part क्योंकि लाइफ में challenges आते हैं, problems आती हैं. Right. उस समय positive mindset चाहिए. Like you have got Tripti. Thank you. I admire you for that. Okay. अरे भाई challenge तो लाइफ में आएंगे ही ना. What is life without challenges? So true. हाँ, मजा ही खत्म. Empty slate. तो इसलिए challenges आए तब आदमी को mind रखे कि yes, challenge आया, we will overcome it, we will develop, do something, and this will be behind us. I only recommend all young people, please give at least half an hour to read a book of your choice every day, if not more. तो किताबों से जो सीखते हैं अपने सीख सकते हैं. It's a condensed things of so much of knowledge and experience of people. तो बजाय आपको trial error करने बजाय if you go through that and if you will follow, save a lot of time. you will move faster in your life. And you're right. So I would really urge all my audience to please make sure that you're reading one good book. And our great speakers have shared so many. With this, Dadaji, I would like to share with you that imagine that there's a big billboard on the road. What would you write to it? What will you get? What will you write? क्या लिखवाएंगे आप उस बड़े बिलबोर्ड पे रास्ते में? To give any message? Yeah, like imagine कि आपको एक बड़ा सा बिलबोर्ड मिल गया है और what message would you write on the same for the public? I'll, the thing which I said, friends have an ambition in life. Yeah. And achieve it through your hard work. So what I call is a combination of aspiration and perspiration. Out of 100, 1% is aspiration, 99% is perspiration. Okay. So true. And the last thing I'll write is keep on learning. Every day. Learning never ends. Definitely. So, Dadaji, just before we end, I mean, there will be so many people who must have inspired you as well, or must have mentored you, coached you.
to be where you are right now. As a token of our this interview, we always talk about those names and ask you, and we call out for them and say thank you, because to have you in our life and to be able to speak to you about it is a big deal, because somebody shapes somebody's future always. It would be great if you can share your mentor's name, people you have inspired you. We would love to record that. Yes, I think, every stage of life, you get inspiration from different people. So there's not one person in life who, you think is inspiring. Obviously, the first inspiration came from parents. They always motivated you, they supported you, they always kept कि भाई कोई बात नहीं, डरो मत, कुछ होएगा तो ठीक हो जाएगा, life will become all right, everything will be okay. Then another thing my parents helped me was they were always close to some saints, so they used to take me to some saints. तो मैंने देखा कि संतों के पास आप जाओ ना, तो बड़ी चीजें वो ज्ञान की बातें कहते हैं, which you can absorb. Then of course teachers. In school, I had one or two teachers who were very inspiring. One teacher, I was very good at mathematics. तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर मेरे को स्कूल में कहते थे, अरे हीरो. He changed my name. कभी आनंद नहीं बोलते, अरे हीरो. That's a very inspiring word. That somebody is recognizing you. Not a big thing. You can be good in any subject, but And then came in my university. I had excellent Professor Devkinandan Allens, D.N. Allens, who was a known authority on the statistics. Even today, if you read any statistics book, that was the first book you'll read by Professor Allens. Now it has been, of course, updated by, I think, his children or students. Then came, of course, my professional degree. My first name is your Dadaji also, Somani uncle. Somani. Mr. Somani, really, I first met him when I was doing my CA and came to collect my prize for CA Inter. That's the first time I met him, and what an inspiration. He has been even today, he has been my inspiration. And my own CA जिनके साथ मैंने article किया. I learned a lot from Mr. Kalani Saab, Pukhrajji Kalani. So, and then during a professional career, obviously, Vinay Bhatram was a great mentor for me. Then Aditya Birlaji, the biggest mentor of my professional career has been Mr. Aditya Birla ji की. उनके साथ जो इतने 20-21 साल मैंने बिताए और उनसे सीखा. Not only business, I learned virtues which are so important, like humility. So important. इतने बड़े आदमी थे, पर humility की मतलब पराकाष्ठा जिसको कहते हैं ना, he always had that. ऑफिस में लेट हो जाते कभी, तो उनका ये था कि बहुत हम्बल, ड्राइवर को 9 बजे बाद कहते चला जाओ, बहुत लेट हो. फिर कभी 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे जाते काम, तो फिर that time I also used to have ड्राइवर को भेज देता. बोला आनंद कैसे जाओगे, या टैक्सी करके जा. अरे नहीं, मैं छोड़ता हूँ. So drive me to my home, drop me and go. Now these are great things to learn from such great people. ये humility जो है लाइफ में, which is what you also, आज सोमानी साहब के क्या है, आज कोई भी मिलेगा तो उनकी humility को मतलब he will be really bow down to his humility. So I think at different parts of life, there is always learning. मैं समझता हूँ आज भी कई गुरु हैं, रोज मैं तो जिनसे मिलता हूँ उनको जिससे सीखता हूँ वो गुरु है. आज तुम दोनों से सीख रहा हूँ, निधि कृप्ति से. I don't think so, Dadaji. I've taken another. This is our second interaction, I believe. One was with our articles. I remember our team, and still it was very inspiring. And every time we hear you, I think it's another story. So I think there can be so many books on you. I don't know if it's already been written, but people like you, I'm sure there should be books on. And I'm really looking forward. We keep learning from you. Thank you. My efforts are on to write the book. Hopefully. You are. Okay. Yeah.
I'm working on that. Wonderful. So great, Tripti, Nidhi. Thank you. Thanks to everyone. Thank you so much. Thank you, everyone.